وہی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی تعمیر کے راستے ہونے لگے ہموار۔ ملتان متی تل میں سول سیکریٹریٹ کے مین روڈ کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ سول سیکریٹریٹ کے 10 کلومیٹر سے زائد ڈبل روڈ کی تعمیر جاری ہے۔ پہلے مرحلے میں 4.4 جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی تعمیر کے راستے ہونے لگے ہموار۔ سیکریٹریٹ کے کام کے آغاز سے قبل متی تل سول سیکریٹریٹ روڈ کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ سول سیکریٹریٹ کے لیے 10 کلومیٹر سے زائد ڈبل روڈ کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں 4.4 کلومیٹر کے روڈ کا کام پایۂ تکمیل پر پہنچے گا۔ سڑک کی تعمیر پر 951 ملین کی خطیر رقم خرچ کی جائے گی، جس کے بعد اسٹیٹ آف دی آرٹ سول سیکریٹریٹ کی تعمیر کا آغاز کیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ افسران پر حکومت کی نوازشات، تنخواہوں سے 1.5 گنا زیادہ الاؤنسز کی منظوری مل گئی۔ گریڈ 17 تا 21 تک 166 افسران کے لیے سیکریٹریٹ الاؤنس کی منظوری دی گئی۔ او ایس ڈی لمبی چھٹی پر گئے افسران اور کنٹریکٹ ملازمین کو سیکریٹریٹ الاؤنس نہیں دیا جائے گا۔ پنجاب سیکریٹریٹ کے گریڈ 21 سے گریڈ 17 تک کے افسران کے لیے محکمہ خزانہ نے سیکریٹریٹ الاؤنس منظور کر دیا۔ الاؤنس جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے 166 افسران کو خصوصی طور پر دیا جائے گا۔ تمام افسران کو ان کی بنیادی سیلری 1.5 گنا زیادہ بطور الاؤنس ملے گی۔ الاؤنس تنخواہ میں ضم کر کے ہر ماہ ادا کیا جائے گا۔ رخصت پر گئے کانٹریکٹ ملازمین اور پہلے ہی الاؤنس زیادہ لینے والوں کو الاؤنس نہیں ملے گا۔ الاؤنس کی رقم پینشن اور گریجویٹی کی رقم میں شامل نہیں ہوگی۔ محکمہ خزانہ نے تمام آفیسرز کے اسکیل وائز الاؤنسز کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب ظفر اقبال کو بڑے اختیارات مل گئے۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے تینوں ریجنز کے ڈی ایس پیز اور ایس پیز کے تبادلے کر سکیں گے۔ انویسٹیگیشن اور صوبائی پولیس سربراہ کے تمام اختیارات حاصل۔ آئی جی پنجاب انعام غنی نے اختیارات پر نیا سٹینڈنگ آرڈر جاری کر دیا۔ جنوبی پنجاب کی 3 ریجنز میں ڈی ایس پی اور ایس پیز کے تبادلے ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کریں گے۔ آئی جی پنجاب انعام غنی نے ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے فرائض بارے نیا سٹینڈنگ آرڈر جاری کر دیا۔ انویسٹیگیشن سے متعلقہ تمام امور کی نگرانی اور صوبائی پولیس سربراہ کے تمام اختیارات حاصل ہوں گے، جس میں طے شدہ طریقہ کار کے مطابق تیسری مرتبہ انویسٹیگیشن کی تبدیلی کے لیے منظوری دینا بھی شامل ہے۔ گریڈ 18 تک ایس پی، ڈی ایس پی اور انسپیکٹر سمیت ایگزیکٹو، منسٹریل اور دیگر سٹاف کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرنے کے مجاز ہوں گے۔ سروس اور ڈسپلن سے متعلقہ امور جیسا کہ گریڈ 17 تک ایگزیکٹو اور منسٹریل سٹاف کی اپیلوں بارے انتظامی اختیارات استعمال کر سکیں گے۔ اور ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ ضلع بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں بارے جائزہ اجلاس لیا گیا۔ میونسپل کارپوریشنز تحصیل کمیٹیوں کے لیے 1 ارب 23 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈی سی امجد شعیب کا کہنا ہے کہ تمام ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا جائے، کون سے منصوبے مکمل ہیں اور جاری منصوبوں پر کتنا کام ہو گیا، مزید کتنا وقت لگے گا، رپورٹ پیش کی جائے۔ تمام ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کیا جائے۔ کسی انتظامی اتھارٹی کی اجازت کے بغیر منصوبوں کا وقت نہیں بڑھایا جائے گا۔ کام اور مٹیریل کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ منصوبوں کی مرمت، ٹکٹائل پلیوں کی تعمیر و مرمت، سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ ضلع بھر میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 ارب 23 کروڑ روپے مختص کیے گئے، جس میں کوٹ ادو میونسپل کارپوریشن کے لیے 14 کروڑ 70 لاکھ، تحصیل کونسل کوٹ ادو کے لیے 34 کروڑ 56 لاکھ، تحصیل کونسل علی پور کے لیے 11 کروڑ 53 لاکھ، تحصیل کونسل مظفر گڑھ کے لیے 25 کروڑ 36 لاکھ، میونسپل کارپوریشن مظفر گڑھ کے لیے 11 کروڑ 58 لاکھ، تحصیل کونسل جتوئی کے لیے 22 کروڑ 70 لاکھ، جبکہ میونسپل کمیٹی سنانو کے لیے 4 کروڑ 36 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کا تونسا کا دورہ، شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ واہ واہ پولیس اسٹیشن سمیت دیگر منصوبوں کی خامیاں دور کرنے کے احکامات دیے۔ ادھر رحیمیہ خان میں کمشنر بہاولپور کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کا تونسا کا دورہ، شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ واہ واہ پولیس اسٹیشن سمیت دیگر منصوبوں کی خامیاں دور کرنے کے احکامات۔ کمشنر ڈی جی خان نے تونسا میں فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب، فیملی پارک کا قیام، واہ واہ کوٹ کیسرانی میں کرکٹ اسٹیڈیم سمیت دیگر ترقیاتی منصوبوں کا بھی تفصیلی معائنہ کیا۔ رحیمیار خان میں کمشنر بہاولپور کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ کمشنر ظفر اقبال نے تعلیم اور صحت کے شعبے میں درپیش خامیوں کو بہتر کرنے کی ہدایات دیں۔ ضلع میں جاری ترقیاتی اسکیموں کو بھی بروقت مکمل کرنے کی ہدایات دیں۔ ترقیاتی
तरक्याती मंसूबों में सुस्त रवि हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रहीमियार खान में डीपीओ असद सरफराज की सरबराही में खानपुर सर्कल की क्राइम मीटिंग हुई। डीपीओ ने मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पर और जल्द करने के अहकाम दिए। ताखीर का शिकार मुकदमात पर तफ्तीशी ऑफिसर्स को काम में बेहतरी लाने की हिदायत की। डीपीओ असद सरफराज ने कहा कि मीटिंग का मकसद थानों की इनफरादी कारकर्दगी का जायजा लेना है। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान महबूब रशीद मियां की सरबराही में क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट के मौका पर सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग हुई। सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से मुशावरत की गई। उधर सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान महबूब रशीद मियां का थाना मखदूम रशीद का दौरा, सीपीओ ने रिकॉर्ड की चेकिंग, हवालात की सूरत हाल, सिक्योरिटी और दीगर अमूर का जायजा लिया। आटा चक्की मालिकान हुकूमत की तरफ से आटा न मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए। आटा चक्कियों पर सरकारी गंदम फराहम न करने पर आटा चक्की मालिकान का डिप्टी कमिश्नर मुल्तान दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हुकूमत से फौरी तौर पर आटा फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया। माहिर इमरान की रिपोर्ट। बंद करो, ताजिरों को माशी कत्लेआम, बंद करो, ताजिरों को माशी कत्लेआम, बंद करो, ताजिरों को माशी कत्लेआम, बंद करो। मुल्तान में आटा चक्की मालकान हुकूमत की तरफ से आटा ना मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए। आटा चक्कियों पर सरकारी गंदम फराहम ना करने पर आटा चक्की मालकान ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस वक्त गल्ला मंडी में गंदम का रेट 2400 रुपये मन है, जिसकी वजह से आटा 70 रुपये किलो है। अगर ये हमें गंदम कंट्रोल रेट पे देंगे तो सरकारी रेट 48 रुपये गंदम का रेट है। इन्होंने जुलाई से फ्लोर मिल वालों को दे रहे हैं और चक्की वालों को बिल्कुल नहीं दे रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि शहर के सरकारी गोदाम से चक्की मालकान को गंदम नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से फी चक्की 3 बोरियां 100 किलो की देने की मंजूरी दी गई थी। ये पाबंद है, हमें देने के आटा देने के पाबंद है चक्की वालों को 3 बोरी डेली की, जिसकी और हमारा जो गंदम का आटा ये फ्लोर मिल वालों को और ब्लैक मार्केट में दिया जा रहा है। फूड अथॉरिटी वाले जो हैं, फूड महकमे वाले मिली भर करके कमाई कर रहे हैं। आटा चक्की मालकान का कहना था कि मुल्तान में 202 रजिस्टर्ड आटा चक्कियां हैं, जिन्हें इंतजामिया को चाहिए कि मुल्तान शहर के गोदाम से गंदम की फराहमी को यकीनी बनाकर चक्कियों का कोटा दिया जाए ताकि शहर को भी सस्ते दामों मिल सके। एहतजाज करते आटा चक्की इन मालकान का कहना है कि अगर इनका कोटा बहाल ना किया गया तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। डीजी खान के सहूलत बाजारों में भी महंगाई कम न हुई, पे इजाफे रोकने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। डेरा गाजी खान के सहूलत बाजारों में भी महंगाई दिखाई देती हैं। सहूलत बाजारों में सब सस्ता या महंगा, अवाम परेशान है। सरकारी सहूलत बाजारों में अंडे की फी दर्जन कीमत में दूसरी बार इजाफा कर दिया गया। अवाम कहते हैं जाएं तो जाएं कहां। सस्ते बाजारों में भी कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। महंगाई पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? बहुत छोटे हैं, मार्केट बाजार से भी बहुत ज्यादा छोटे हैं यहाँ पे ना। जब ये बाजार लगा था उस वक्त 30 रुपए दर्जन के पीछे बढ़ा दिए गए हैं यहाँ पर ना। सरकारी बाजारों में 160 रुपए फी दर्जन में मिल रहे अंडे 20 रुपए फी दर्जन बढ़ा दिए गए। अंडों की फी दर्जन कीमत सहूलत बाजारों में 180 रुपए हो गई। सस्ते बाजारों में आवाम को इतने छोटे अंडे मिल रहे पर मजबूर है कि ये अंडा मुर्गी का है या फिर कबूतर का। सस्ते बाजारों में टमाटर, आलू, अदरक की कीमतें भी ताहाल नीचे न आ सकी, जबकि मुर्गी का गोश्त भी 20 रुपए इजाफे के साथ 290 रुपए फी किलो हो गया। सहूलत बाजार में सस्ती चीजों की तलाश में आने वाले अफराद इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मिलने वाले अंडे मुर्गी के हैं या फिर किसी चिड़िया के, क्योंकि यहाँ पर अंडों का साइज भी कम है, छोटा है, और उसके साथ साथ कीमतें भी मुसलसल बढ़ रही हैं, जिसको शायद ना तो इंतजामिया और ना ही हुकूमत किसी तरीके से संभाल पा रहे हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मौसम मोल्क, डेरा गाजी खान। शाहीनों का शहर सरगोदा सुई गैस की बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गया। सरगोदा शहर को सुई गैस फराहम करने वाली मेन पाइपलाइन फट गई। शहर भर की सुई गैस फराहमी 20 घंटों तक मुअत्तल रही। शहर की 80% तक गैस फराहमी बहाल कर दी गई। सरगोदा में गुज़श्ता रात नूरी गेट के करीब शहर को सुई गैस फराहम करने वाली मेन पाइपलाइन फट गई, जिसके बाद शहर भर को सुई गैस की फराहमी कई घंटे मुअत्तल रही। 20 घंटे तक शहर की 100 से ज्यादा कॉलोनियां सुई गैस से महरूम रहीं। महकमा सुई गैस का अमला नूरी गेट पर गैस पाइपलाइन की मरम्मत के लिए दिन भर मुतहरिक रहा। तर्जुमान के मुताबिक 80% गैस की बहाली कर दी गई है, जबकि मुकम्मल बहाली के लिए मजीद वक्त दरकार होगा। घरों में खवातीन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा, जबकि शहरी गैस सिलेंडर भरवाने के लिए भी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर रहे।
दौरे जदीद में पत्थर के जमाने की यादें ताज़ा हो गईं। खानपुर रोही चोलस्तान चालाखे वाला बुनियादी सहूलियात से महरूम, ना कोई सरकारी स्कूल है, ना इंसानों और जानवरों की कोई डिस्पेंसरी। इलाका मकीन सहूलियात की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज हैं। आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा किया। चालाखे वाली के मकीनों ने एहतजाज करते हुए बताया कि उन्हें बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं, सहूलियात के लिए शहर जाना पड़ता है। चालाखे वाली से खानपुर 160 किलोमीटर और रहीमिया खान 175 किलोमीटर दूर है। बीमार होने वाले अफराद शहर जाते हुए अक्सर रास्ते में ही इंतकाल कर जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान टूरिज्म को फरोग दे रहे हैं, लेकिन इस इलाके में सड़क तक नहीं बनाई गई। अहले इलाका ने वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से बुनियादी सहूलियात का मुतालबा किया है। स्पेशल अफराद को कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि बसारत से महरूम अफराद छुए बिना कुछ महसूस नहीं कर सकते। कोरोना वायरस से वो अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं, देखिए अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट में। इस वक्त पूरे मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ रही है। माहिरीन सेहत के मुताबिक कोरोना से बचने के लिए समाजी फासला रखना चाहिए और किसी को छूने से भी गुरेज करना चाहिए, मगर स्पेशल अफराद के लिए इस वबा से बचना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वो किसी भी चीज को छुए बिना नहीं रह सके। इस हवाले से इन तक आगाही पहुँचाना जरूरी है। ब्लाइंड का जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि नाबीना अफराद जितने भी होते हैं वो अपना हर काम टच से, हाथ से छू कर, महसूस करके, फील करके फिर करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब भी इसमें हम जब भी कोविड का जब से मसला हुआ है तो इसमें वो ये होता है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, तो ब्लाइंड लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। ब्लाइंड सेंटर की चेयरपर्सन सादिया करमानी का कहना था कि बसारत से महरूम बच्चे जब तक सेंटर में मौजूद थे महफूज थे, क्योंकि इनको यहाँ संभालने और कोरोना से बचने की आगाही देने के लिए लोग मौजूद थे। नाबीना अफराद को इस वबा से बस आगाही देकर ही बचाया जा सकता है। कि हम ब्लाइंड में जो है कोविड की सिचुएशन को किस तरह फैलने से हम रोक सकते हैं, तो उसमें सबसे अहम चीज ये होती है कि जहां पर भी ब्लाइंड लोग हैं वो अपनी जो मोबिलिटी है उसको जो है वो जो है अपना जो है कंट्रोल कर लें। तो सेकेंडली जो है वो अपना टच से, छूने से जो है पहले जो है वो अपना जो है बोल के या इस तरह से करके जो है वो मतलब पूछें, बात करें और उस तरह से वो करके वो करें, मतलब और लेकिन वो और बाहर लोगों से हर एक से जो है मिले नहीं। सेंटर की चेयरपर्सन का मजीद कहना था कि हमें स्पेशल अफराद को बताना है कि वो बाहर कम से कम निकलें, जितना हो सके चीजों को छूने से गुरेज करें। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे नाबीना अफराद को इस वबा से बचाया जा सकता है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का मुल्तान का 3 रोजा दौरा। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। अदालती समाअत की और वकला वफूद से उन्होंने मुलाकातें भी की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में मसरूफ दिन गुजारा। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने 3 रिट दरख्वास्तें निपटाई और जमानत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान सुबह भी मुल्तान में मसरूफ दिन गुजारेंगे। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच पहुंचने पर चीफ जस्टिस का रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद औजला, सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार मोहम्मद यार वेलाना ने इस्तकबाल किया। और रहीमिया खान में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वालों के लिए कॉपी पेंसिल पकड़कर तहरीरी टेस्ट देने का रिवायती अंदाज खत्म हो गया। कंप्यूटर के आगे बैठे ई साइन टेस्ट देकर ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए एक मरहला पास कर सकेंगे। डीपीओ सरफराज ने ई साइन टेस्ट का इफ्तिताह कर दिया है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट में जानिए। रहीमिया खान से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना है तो तहरीरी इम्तिहान की बजाय ऑनलाइन टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। ड्राइविंग लाइसेंस के उम्मीदवार टोकन हासिल करने के बाद कंप्यूटर के सामने बैठकर अपना टोकन नंबर दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर आने वाले सवालात का जवाब देंगे। दुरुस्त या गलत जवाब कंप्यूटर रिजल्ट 100% मेरिट पर देगा। तहरीरी इम्तिहान के जरिए पसंदीदा उम्मीदवार को नवाजने का इल्जाम भी खत्म हो जाएगा। ई साइन टेस्ट का इफ्तिताह करते हुए डीपीओ सरफराज का कहना था कि ड्राइविंग लाइसेंस का निजाम शफाफ बनाया जा रहा है और ई साइन टेस्ट इसी सिलसिला की कड़ी है। ये एक कदम उठाया गया है कि जितने भी टेस्ट होगा अब वो जिला रहीमिया खान के अंदर वो ऑनलाइन होगा। इसके ऊपर ही फौरी उसका टेस्ट होगा। 2 से 2.5 मिनट तकरीबन लगते हैं इस एक प्रोसेस के अंदर। फी कैंडिडेट बैठेगा, उसी वक्त अपना टेस्ट देगा, ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा, उसी वक्त उसका रिजल्ट निकल आता है, उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी।
डीएसपी ट्रैफिक ज़ादा चौधरी का कहना था कि उम्मीदवार खुद बैठकर इम्तिहान देगा और टेस्ट का निज़ाम भी शफाफ होगा। 20 सेकंड होंगे, 10 जिसमें पूछे जाएंगे इशारे, 10 में से वो 5 का सही जवाब देगा तो उसकी पास की स्लिप निकल आएगी। अगर वो 5 से कम जवाब सही देगा फिर वो फेल हो जाएगा। कंप्यूटर के जरिए उसको स्लिप मिल जाएगी कि वो फेल है या पास है। ये लोगों की सहूलत के लिए और सिस्टम को मजीद जो है वो करप्शन से पाक करने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए शफाफ निज़ाम पर एतराज़ात सामने आते हैं। नए निज़ाम से ड्राइवर्स की जांच का निज़ाम शफाफ होगा। ई चलान टेस्टिंग में एक उम्मीदवार को 2 मिनट में 10 सवालों के जवाब देने हैं। अगर 5 सवालों के जवाब सही दे दिए तो वो कामयाब करार पाएगा। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स लेक्चरार की सदाधिकार बढ़ाने के लिए वाइस चांसलर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सजाद खान ने लेक्चर दिया। असातिज़ा को बेहतरीन तालीम देने के साथ साथ उनके बच्चों को तरबियत में अमली हिस्सा लेने के हवाले से लेक्चर दिया। रिपोर्ट देखिए। बच्चों की तरबियत और तालीम के साथ साथ आने वाली नस्लों को रस्म रवाज और रवादारी का दर्स देना उस्ताद की जिम्मेदारी होती है। असातिज़ा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए वाइस चांसलर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सजाद खान का लेक्चर देते हुए कहना था कि तालीम एक अहम शोबा है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी भी दुआ करते थे कि अल्लाह ताला दोबारा मौका दे तो वो उस्ताद बने। उस्ताद को अपनी इस्तादकार का एहसास नहीं, वो इससे भी ज्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं। नौजवान लेक्चर को सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि ये अपनी जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज में समझ ले तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। सलमान साहब ने मुझे कहा कि आप आ रहे हैं और कई सारी चीज़ें हैं, तो मेरा ख्याल था कि यस हमें मैं इनके साथ मिलके तो देखता हूँ, यंगस्टर को मोटिवेट करता हूँ कि ये ना सोचें कि ये इन्होंने पढ़ाना था और ये साइंस करनी थी। नहीं, इनकी कैपेसिटीज़ और बहुत ज़्यादा हैं और ये जिम्मेदारी का एहसास अगर थोड़ा सा बेहतर कर सकें तो उसमें डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं। डीन ऑफ फैकल्टी प्रोफेसर डॉक्टर असगर हाशमी का कहना है कि लोगों की खिदमत के बारे में सीखा, फलाही कामों में जवानी में हिस्सा लेकर अपनी जिम्मेदारी अदा करने के बारे में सीखने को मिला। हमें सबको बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान इस चीज़ को एहसास करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इज़्ज़त दी है, हमें अच्छी रोज़ी दी है, तो हम जिन लोगों के पास रोज़ी नहीं है या गरीब हैं, जो इनके 2 टाइम 1 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती, उनका ख्याल रखना चाहिए। वाइस चांसलर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ने तालीम से महरूम रह जाने वाले मुस्तहिक और गरीब बच्चों के पास मौके न होने पर इनकी मदद करके इनको निखारने की अहमियत को भी बयान किया। नौजवान लेक्चरार और प्रोफेसर्स को तालीम से दूर बच्चों को तालीमी धारे में लाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की भी तरगीब दी। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। रेस्क्यू मुल्तान नेशनल रेस्क्यू चैलेंज मुकाबले में पंजाब में 2nd पोजीशन हासिल करके टोक्यो मुकाबलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने टीम को सर्टिफिकेट दिया। बेहतरीन टीम वर्क की बदौलत रेस्क्यू 1122 मुल्तान नेशनल रेस्क्यू चैलेंज मुकाबले में पंजाब में 2nd पोजीशन हासिल करने पर कामयाब हो गई। जिला काउंसिल मुल्तान में तकसीम असनाद की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने खुसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कामयाब होने वाली टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। और लिया में महकमा सेहत ईपीआई फेडरेशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ उठा लिया। ज़राई सदर पैरामेडिकल स्टाफ एहसानुल्लाह सयाल ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। लिया में महकमा सेहत ईपीआई फेडरेशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान की हल्फ बर्दारी की तकरीब निजी होटल में मुनाकिद हुई। वैक्सीनेटर महकमा हेल्थ पर मुश्तमिल ईपीआई फेडरेशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना।